Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have completed chapter 6, right? We have completed our chapter 6 that was related Emperor Ashoka, that was a Mauryan age and Chandragupta and Emperor of Ashoka, right? वो हमने कौन सी एज पढ़ी थी? तो हमने मौर्यन एज पढ़ी थी. अब हम पढ़ेंगे गुप्ता एज एंड अदर रूलर्स. कंफ्यूजन मत होना, इस चैप्टर में चंद्रगुप्त 1 एंड समुद्रगुप्त का भी यूज किया हुआ है नेम, बट ये नेम है गुप्ता एज के. हमने जो पहले चैप्टर 6 कंप्लीट किया वो चैप्टर था मौर्यन एज का. ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो नाम सुना होगा ना, किंग अशोका, एम्परर अशोका के बारे में, वो नेम था. अब आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम गुप्ता एज के बारे में स्टार्ट करेंगे, उनके किंग्स एंड रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? दैट वाज अवर चैप्टर 7 and now today we are going to start our chapter 7, that is Gupta age and other rulers. In this chapter we will learn about Samudragupta, Chandragupta first, Chandragupta 2 second, and their end of Gupta dynasty. Then after we will learn something about administration, economic and religious status of Gupta age, right? So today we are going to start chapter 7, that was Gupta age and other rulers, right? In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace, security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called the golden age of India. Golden age means best progress of all the people. The Gupta rulers gave a peace and prosperity to the people, which has been appreciated by foreign traveler also. Gupta emperor was creator of golden age. अभी गुप्ता एज को गोल्डन एज क्यों माना जाता है? गुप्ता एज को गोल्डन एज इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां पे बेस्ट प्रोग्रेस हुई थी लोगों की वेल्थ और हेल्थ दोनों से रिलेटेड, राइट? इसलिए गुप्ता एज को गोल्डन एज भी माना जाता है. अब एंड हुआ था हमारा कौन सी डायनेस्टी में? तो हमने मौर्य एम्पायर जो था वो एंड हो गया था. ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो हमारी एंड हो गई थी. वहां पे हमने कंप्लीट किया था. वो चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्यन एम्पायर एंड हुई थी. उसमें हमने बिंदुसर, चंद्रगुप्त, देन किंग अशोका के बारे में पढ़ा. अभी ये जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है गुप्ता एज. इट मीन्स गुप्ता डायनेस्टी, राइट? अब इस डायनेस्टी को गोल्डन एज भी माना जाता है बिकॉज उस टाइम पे लोगों की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई थी, रिलेटेड टू हेल्थ एंड वेल्थ ऑल्सो. प्रॉस्पेरिटी थी, पीस था. दैट्स वाई इट इज नोन एज दैट गुप्ता एज. इट इज ऑल्सो नोन एज अ golden age. Now, Chandragupta first. Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty. Now, who is the founder of Gupta dynasty? Sri Gupta first was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad. अभी श्री गुप्ता जो थे वो फर्स्ट फाउंडर थे गुप्ता डायनेस्टी इन द किंगडम ऑफ मगध. ठीक है, प्लेस वही है मगध, बट डायनेस्टी क्या हो गई? चेंज हो गई. पहले थे मौर्यन डायनेस्टी, अब हो गई है कौन? गुप्ता डायनेस्टी, राइट? उसमें चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता मौर्यन डायनेस्टी के. इसमें श्री गुप्ता है वो फर्स्ट है गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर. हिज सन नेम वाज घटोत्कच गुप्ता. Chandragupta first 318 AD, that was considered, that was BC, that is before Christ. Now it is considered that AD, that is after Anno, that is Anno Domini, right? ये हमने फुल फॉर्म भी पढ़े हैं, चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, राइट? That is succeeded Patliputra as a successor of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was the girl of powerful Lichavin tribe. He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, that was in Allahabad, Saket, Ayodhya. He assumed the glorious title of Maharaja Dheeraj in a place of Maharaja.
In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accession of his coronation, he started a Gupta Samvat. Vallabhi rulers of Saurashtra also accepted a Gupta Samvat. Due to intention of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the deadline was made possible in the history of India. Now, गुप्ता एज के फाउंडर कौन है? तो श्री गुप्ता है, राइट? कौन से? 318 AD, राइट? गुप्ता एज के सन कौन? श्रीगुप्त के सन कौन? हिज सन नेम वाज घटोत्कच. So he married to whom? He married the Kumar Devi, who was the girl, powerful girl of Lichavi tribe. अब जो लिच्छावी क्राइट से बिलोंग, कास्ट से बिलोंग करती है, राइट, उस पावरफुल देवी मतलब उस लड़की के साथ घटोत्कच ने क्या किया? शादी की. देन आफ्टर उसने बंगत के साथ बाकी दूसरी जो प्लेसेस थी, बाउंड्रीज थी, उसको भी कैप्चर कर लिया, राइट. देन आफ्टर उसको टाइटल दे दिया. दैट वाज द टाइटल नेम ऑफ महाराजा धीरज in the place of Maharaja. Then after उन्होंने क्या किया? In order to show his power reputation, he started a golden coins. उसने अपनी पावरफुल जो थी ना चीज, दैट उसने बहुत छोटे ही टाइम में काफी सारी जो चीजें थी उसने क्या कर डाली थी? एक्सटेंड कर डाली थी. तो उसने क्या स्टार्ट किया? गोल्ड कॉइन स्टार्ट किए. अब वो गोल्ड के कॉइन स्टार्ट किए एंड उसमें भी उसने क्या क्या कहते हैं कि भाई छपवाया, राइट. अपने अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं, देखो गुप्ता एजेंट्स के गोल्ड कॉइन्स, राइट. उसमें उसने किस तरह से पूरे कॉइन्स को क्या कहते हैं कि छपवाया. एंड वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स का स्टार्ट किया एंड उसको मार्केट में लाइक दैट गुप्ता एज के गोल्ड कॉइन्स. सी हियर इज द पिक्चर, यू कैन सी द पिक्चर, राइट. आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, गुप्ता एज के कॉइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बट जस्ट नाउ आई एम शोइंग द कॉइन्स. यू कैन सी द कॉइन्स, द पिक्चर ऑफ कॉइन्स, राइट. So, due to the intention of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the deadline was made possible in the history of India. So, due to the intention of Gupta Samvat, तो अरेंजमेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन उससे पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, राइट. समवत होते हैं ना, उस थ्रू से उन्होंने क्या किया कि भाई अपनी अरेंजमेंट जो हिस्टोरिकल इवेंट्स जो भी फेस्टिवल्स वगैरह व्हाट वी आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द उस डेडलाइन से पॉसिबल हुई इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, राइट. नाउ एम्परर समुद्रगुप्ता. अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्ता के बारे में, राइट. आफ्टर चंद्रगुप्ता हिज मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर. पहले यहाँ पे पढ़ो कौन है फाउंडर? तो है श्रीगुप्त फाउंडर, राइट. उनके सन का नाम क्या था? घटोत्कच. नाउ हम पढ़ रहे हैं अभी समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है. अब वो समुद्रगुप्ता क्या किसके बाद है? तो चंद्रगुप्त के मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर किसके सन है? तो चंद्रगुप्त के सन है, राइट. ठीक है, देखो कंफ्यूजन मत होना. श्रीगुप्त फाउंडर है गुप्ता डायनेस्टी के. अभी उसके सन घटोत्कच गुप्ता जिसको टैग दिया गया चंद्रगुप्त फर्स्ट, राइट. उन्होंने सक्सेस किया, सब कुछ किया. महाराजा का उनको क्या कहते हैं कि भाई नेम दिया गया, ग्लोरियस उन्होंने बहुत हासिल की. एंड उन्होंने क्या किया? गोल्डन कॉइन्स भी स्टार्ट किए. अभी उनको किसका नाम दिया गया? चंद्रगुप्त फर्स्ट. दैट वाज प्रॉपर नेम वाज दैट वाज घटोत्कच गुप्ता. दैट वाज नोन एज द चंद्रगुप्त फर्स्ट. अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनके जो बेटे आए वो कौन है? समुद्रगुप्त, ठीक है. तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद उनके बेटे हैं समुद्रगुप्त. तो आफ्टर द चंद्रगुप्त हिज मैजेस्टिक सन समुद्रगुप्त केम इनटू पावर. Information about the Samudragupta's time is obtained from the pillar inscription of Prayagraj and his coins. This Prashasti has been composed by royal poet Harishan. It describes the victorious and cultural achievement of Samudragupta. In a very short time, he made his triumphant journey from northern states to the Kushan rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defeating these sons, kings, he restored him wisely. He restored their kingdoms, governor officials, and were appointed to run the administration of the state.
Samundragupta was a great conqueror and cultural emperor. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his available today. One coin shows the Samundragupta playing a veena, which shows his love for music. During the region, many temples, monasteries, Jain temples were constructed. He performed Ashwamedha Yagna. In this regard, he got a coin mad. He had got coins mad. He collected scholars in his court and created high quality literature. Scholars wanted he wanted a scholar championship. He encouraged Hinduism, embarrassed social customs. Samundragupta's position in the history is unique, significant, and he was a creator of importance of Gupta Empire. देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में. फाउंडर है श्रीगुप्ता, उसके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट. अभी चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में उसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त. अभी समुद्रगुप्त जो है उसकी जो बातें की जाए, दैट वाज फिनोनियम्स. उन्होंने छोटे ही टाइम में अपनी बहुत सारी क्या कहते हैं कि भाई जो उनका एम्पायर था वो उन्होंने क्या किया? एक्सपांड कर डाला. एंड इवन दो उन्होंने वो ये क्या कहते हैं कि भाई एम्पायर जो एक्सपांड किया बहुत ही छोटे टाइम पे, बट वहाँ की जो उसकी जो शॉर्ट टाइम की जो जर्नी है ना वो बोलने जैसी है कि उन्होंने थोड़े ही टाइम पे नॉर्दर्न स्टेट्स ले लो, साउदर्न स्टेट्स ले लो, वहाँ पे थोड़े ही टाइम पे उन्होंने पूरा का पूरा अपना रोल आजमा लिया. इवन दो उन्होंने साउथ के 12 किंग्स मीन्स 12 किंग्स कि उन्होंने क्या किया? डिफिटेड को डाला. एंड उसकी जो भी किंगडम्स थे एंड वॉट एवर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड हाउ ही इज डूइंग ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उन्होंने थोड़े ही टाइम में वो क्या कर डाला? हासिल कर डाला. इवन दो समुद्रगुप्ता जो थे वो पोयम भी कंपोज करते थे एंड उनको म्यूजिक बहुत पसंद था, राइट? उनको वीणा बजाना बहुत पसंद था, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था. एंड उनको पोयम्स जो थी उन्होंने पोयम्स लिखी भी थी. दैट्स वाई उनको कविराज भी बोला जाता है, राइट? ही गॉट द टाइटल ऑफ कविराज ऑल्सो. एंड आपने देखा होगा, हम अभी अगर पिक्चर आगे देखेंगे उसमें देखेंगे कि उन्होंने अपना लव दिखाया है वीणा का. समुद्रगुप्ता को म्यूजिक बहुत पसंद था तो उन्होंने खुद के ही कॉइन्स में एक साइड प्लेइंग वीणा इस टाइप का उन्होंने कॉइन छपवाया जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इवन दो उसके टाइम पे जैन टेम्पल्स ले लो या नॉर्मली मोनेस्ट्रीज ले लो, टेम्पल्स बहुत सारे ले लो, जितनी भी लिटरेचर्स जो भी काफ़ी जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हुए उसके टाइम पे बहुत ही अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट हुए और उन्होंने खुद के छोटे ही टाइम पे बहुत ही बड़ा अपना राज्य जो होता है वो एक्सपांड कर डाला. इसीलिए समुद्रगुप्ता का नाम आज भी काफ़ी आगे है. एंड वो गुप्ता एज में बहुत ही अच्छे कॉन्कर एंड कल्चर्ड एम्परर थे जिन्होंने बहुत ही छोटे ही पीरियड में अपना जो एम्पायर एक्सपांड किया. इवन दो वो पोएट भी थे, उन्होंने कविराज का टाइटल भी लिया एंड उन्होंने जो भी अपने कॉइन्स वगैरह छपवाए उन्होंने उसमें टू शो द लव ऑफ टू शो हिज लव टूवर्ड्स द म्यूजिक he shows one side on the coin playing veena to show for the love for his music, right? उन्होंने उस तरह से अपने कॉइन्स में वो छपवाए भी थे, राइट? सो ही वॉज अ ग्रेट क्रिएटर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर. सो अगर गुप्ता एम्पायर की बात की जाए तो ही वॉज अ क्रिएटर इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्ता एम्पायर. इवन दो यू कैन सी हियर द कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाई और अभी भी दिखा रही हूँ, राइट? सो ही वॉज अ लवर of music also. Who? That was Samundragupta. Now Chandragupta II,
First we had learned about Chandragupta first. Now we are going to learn that is Chandragupta 2. उसका नाम है विक्रम आदित्य. कंफ्यूजन मत होना. जो फर्स्ट चंद्रगुप्त थे उनका नाम था घटोत्कच, जिसको चंद्रगुप्त फर्स्ट का टैग दिया गया, एंड समुद्रगुप्त उसके बेटे थे. ये चंद्रगुप्त 2 है जिसको विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है. राइट? तो डोंट बी अ कंफ्यूज्ड दैट फर्स्ट चंद्रगुप्त, सेकंड चंद्रगुप्त, उसका बेटा समुद्र, ये वो कंफ्यूजन नहीं होना है. बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है टफ. श्रीगुप्ता है वो फाउंडर है. चंद्रगुप्त फर्स्ट जिनका नाम घटोत्कच है वो उनके बेटे, एंड समुद्रगुप्ता वो उनके बेटे चंद्रगुप्त फर्स्ट. अब हम ले रहे हैं चंद्रगुप्त 2 का जिनका नाम है विक्रमादित्य ऑल्सो. समुद्रगुप्ता डाइड. In his place, Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the region. Chandragupta II was the most talented ruler of Gupta dynasty. The boundary of his empire extended about the Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended the Shakshtrapa dynasty, and to commemorate this victory, he adopted the title of Shakari. He was also called Vikram Aditya. He increased his military power by establishing material relations with powerful kingdoms, removed Shakshtraps who had been ruling since 300 years. This marriages proved to very helpful in increasing his empire and defeating his enemies. New territories won by him were very important. They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra, the prosperous ports Brikhu Kutch, that is Bharuch, and Stambhatirth, that is Khambat. As a result of maritime trade of his increasing, and Gupta kings become the owner of intangible property. Now, हमारे क्या हुआ, समुद्रगुप्त तक पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त 2. अब चंद्रगुप्त 2 कौन है? कोई नहीं है, विक्रमादित्य ही है. राइट? अब चंद्रगुप्त 2 जिनकी डेथ हो गई तो उनकी प्लेस पे कौन है? सॉरी, समुद्रगुप्त जो है जिनकी डेथ हो गई उनकी प्लेस पे कौन है? विक्रमादित्य. वो कौन है? चंद्रगुप्त 2 came to the throne. Is not successfully preserved the great legacy of his father, but his inherited has also expanded, expired by conquering some of this region. अभी ये कौन है? तो ये किसके बेटे हुए? ओबियसली समुद्रगुप्ता के ही बेटे हुए, जिसको चंद्रगुप्त 2 का टाइटल दिया गया, जिसका नाम क्या है? विक्रमादित्य है. तो वो भी जैसे समुद्रगुप्त कम नहीं थे, उन्होंने अपना जो एम्पायर है जो बहुत अच्छी तरह से एक्सपांड किया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से रूल दिखाया अपना, क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त ने, जिन्होंने कॉइन्स छपवाए, जहां उन्होंने अपना क्या कहते हैं, एक्सपांड दिखाया, एम्पायर एक्सपांड दिखाया. देन आफ्टर उन्होंने कॉइन्स छपवाए. वो पोएट भी थे, उनको कविराज का भी टैग दिया गया. उसी तरह चंद्रगुप्त 2 जो विक्रमादित्य है वो भी ऐसे ही सक्सेसफुल एम्पायर थे, जो मोस्ट टैलेंटेड रूलर थे गुप्ता एज की डायनेस्टी में, और उन्होंने गुजरात पे अटैक किया. एंड शक्यक्षत्रपा जो डायनेस्टी है उनको उन्होंने हराया, इसलिए उनको शाकारी का भी टाइटल दिया गया. एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य. वो विक्रमादित्य, जो कंफ्यूज्ड मत होना अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग, डोंट बी अ कंफ्यूज्ड. if you don't remember the Chandragupta 2, you can remember the name that was an विक्रमादित्य. राइट? और वो भी उनकी तरह समुद्रगुप्त की तरह ही काफी टैलेंटेड पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने सौराष्ट्र गुजरात किंगडम पे भी काफी लॉन्ग टाइम पे जो राज कर रहे थे उनको हरा के उन्होंने अपना एम्पायर वहां पे एस्टैब्लिश्ड किया. एंड उस टाइम पे जो खंबात भरूच के पोर्ट्स जो हैं जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स होता है, उस टाइम पे भी क्या कहते हैं कि भाई दिखाया. इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि तब के टाइम से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो चीज़ें यहाँ से वहाँ लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है
वो बहुत ही अच्छी चली आ रही थी. You can think about it. We are talking about that at that time we don't have any type of technology. Then also उनके टाइम की जो गुप्ता एज को गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ले लो या उनके लोगों की बातें ले लो या फिर उन्होंने जो अपना एक्सपांड किया एम्पायर, उनकी बातें ले लो, दैट वाज टू माइंड ब्लोइंग दैट वी don't have the words to say about the Gupta age, right? He become the owner of intangible property. Intangible property means हम गिन नहीं सकते इतनी प्रॉपर्टी कि वो कौन बन गए, राजा बन गए. You can see the picture also here, map of India during the Gupta age period. You can see Gupta age period, right? Here the map is given and you can see how much the Gupta age was expanded during the age of Samudragupta, that was Vikram Aditya. Now, when a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II praised administrations and prosperity of through Chandragupta II was Vaishnava. When a Chinese pilgrim in the time of Chandragupta II praised administrations and prosperity of Gupta Empire. Though Chandragupta II was Vaishnava, he had a great respect for other religions. His army chief Amrakar Dev was Buddhist and his state minister Varsan was a Shiva. Many monasteries were there in the capital Patliputra. Because of cultural achievements achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of scholars and poets. The great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet of Dhanvantri was his royal Vidya. Gems like scientist Varahamihir, Vittal Bhatt, writer of Amar Kosh, Amar Singh, etc. used to adorn the court. During his rule, sculpture, drawing developed. Many of pavilions of Ajanta caves were made during his time. He built a member of Buddhist monastery in the capital of Patliputra. Mehroli iron pillar near Delhi was made during his reign, which was not rusted for centuries despite being in heat and rain. He made Ujjain is another capital besides of Patliputra. He divided the state into different administrative units for running streamlined administrations. In the year 414, the great emperor Chandragupta Vikram Aditya died. Now, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विक्रम आदित्य, दैट वॉज द चंद्रगुप्त टू के बारे में, राइट? यहाँ तक तो हमने पढ़ा दैट वो ग्रेट थे, बट स्टिल वो जो थे वो कौन थे, कौन से धर्म से बिलोंग करते थे? वो वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे. पर फिर भी वो दूसरे धर्म जो भी रिलीजियस थे उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे, राइट? उनके जो चीफ कमांडर ले लो या नॉर्मली मिनिस्टर ले लो, तो कोई है ना वैष्णव धर्म के थे, तो कोई बुद्धिस्ट को मानते थे, तो कोई शिव जी को मानते थे, जो शिव जी को मानते थे. देन ऑल्सो उन्होंने सारे धर्म को अपनी रिस्पेक्ट दी और उन्होंने अपना क्या कहते हैं कि भाई मोनेस्ट्रीज, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज वगैरह उन्होंने पाटलिपुत्र जो है कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र में उन्होंने काफी सारी बनवाई. मोनेस्ट्रीज मीन्स डोंट बी कंफ्यूज्ड इन द मोनेस्ट्रीज. जैसे कि बुद्धिस्ट जो होते हैं, बौद्ध धर्म के वगैरह होते हैं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, वो अपनी मोनेस्ट्रीज बनाते हैं, वो उनको मोनेस्ट्रीज बोलते हैं. वो जहाँ जाते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट के साइड जाओगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, वहाँ पे आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज मिलेगी. जो बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि भाई उनका, जैसे कि हम मंदिर में कैसे बैठ के शांति से पाठ पूजा जो करते हैं, वैसे ही वो लोग वहाँ पे करते हैं, राइट? सो
उसका मीनिंग होता है मोनेस्ट्री। देन आफ्टर अगर हम बात करें उसकी अचीवमेंट्स की, तो उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए। इवन दो ग्रेट पोएट्स, कालिदास ले लो, धन्वंतरी ले लो, ये जो ग्रेट पोएट्स वगैरह थे, राइटर्स वगैरह थे, जिन्होंने उसके टाइम पे बहुत सारी अच्छी जो चीज़ें जो है वो तो उन्होंने करवाई, बिल्ट, जिन्होंने बिल्ट भी करवाई है, लाइक जेम्स, लाइक साइंटिस्ट वरहमिहिर, फिर वाइटल बर्ट सॉरी, ये जो राइटर्स हैं, राइटर्स ऑफ अमरकोश, अमर सिंह एक्सेट्रा, ये जो है वो उनके कोर्ट की, उनका जो पैलेस था, उनकी एडोन द कोर्ट, मतलब उनकी तारीफ कर के थकते नहीं थे। दैट वॉज एन अमेजिंग। इवन दो उन्होंने स्कल्पचर में भी, आर्ट में भी, अजंता केव्स ले लो, उसके टाइम पे अजंता केव्स जो है वो उसके टाइम पे क्या की है अभी, की हुई है उस टाइम की है, मैड वह केव्स वर मैड ड्यूरिंग हिज टाइम, उसके टाइम्स की हुई है। इवन दो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज है। and then after in the capital of Patliputra, then after Mehrauli आयन पिलर जो है नियर दिल्ली, राइट, वो अभी तक ड्यूरिंग हिज रीजन वॉज नॉट रस्टेड फॉर सेंचुरीज डिस्पाइट बीइंग अ हीट एंड रेन। ये आप आयन पिलर का पिक्चर देख सकते हो, राइट। इतने मतलब तूफान आए, क्या कहते हैं कि भाई बारिश हो, साइक्लोन हो या कुछ भी हो, स्टिल वो रस्ट नहीं हुआ है ड्यूरिंग अ हीट एंड रेन। इतनी धूप मिलती हो उनको, इतना बारिश पानी मिलती हो, स्टिल वो अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। आप सोच सकते हो कि उनकी जो क्या कहते हैं कि भाई बनाने की जो कला, आर्ट थी, वो अभी तक दिखी नहीं है during the period of Gupta age, right? He made Ujjain is another capital, even though उन्होंने उज्जैन को उसका दूसरा कैपिटल बनाया, पाटलिपुत्र उन्होंने फर्स्ट अपना कैपिटल बनाया, राइट। तो अगर कोई भी किंग लो, कोई भी राजा लो, साउथ का लो, नॉर्थ का लो, इन्होंने जो पैलेसेस, इन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं, उनकी जो करामत है, दैट वॉज अ माइंड ब्लोइंग। उनकी बात नहीं की जा सकती है। अभी तक आप साउथ के बहुत सारे टेम्पल ले लो, बुद्धेश्वर टेम्पल या कोई भी टेम्पल ले लो, अभी तक उनकी जो बनी हुई चीज़ें हैं लॉन्ग पीरियड अगो की किंग्स की, वो अभी तक ऐसी की ऐसी ही है। मतलब हम उनकी बात नहीं कर सकते। इवन दो अगर आप एम्परर कौन से, अगर हम मुगल एम्पायर में चले जाओ तो ताजमहल को ले लो, दिल्ली फोर्ट को ले लो, देन आफ्टर क्या कहते हैं कि भाई वो कुतुब मीनार ले लो, उनकी टाइम के पीरियड की चीज़ें अभी तक जो बनी हुई है उनकी बात नहीं की जा सकती है। स्टिल अभी भी वो ऐसी की ऐसी ही है, राइट। फिर क्या हुआ, एंड ऑफ गुप्ता एज का हो गया, ठीक है। चंद्रगुप्त की क्या हो गई, 404 साल, 414 साल। इन द ईयर 414 इन द ग्रेट एम्परर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य डाइड। 414 इन द ईयर में उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। फिर क्या हुआ, एंड ऑफ क्या हो गया, गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का क्या हो गया, एंड हो गया। एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी के बाद हम पढ़ेंगे कि भाई गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, उनका रिलीजन स्टेटस क्या था, राइट। अभी हम पढ़ रहे हैं इतना एंड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त II, हिज मैजेस्टिक सन कुमार गुप्ता फर्स्ट केम टू थ्रोन. During his time, some famous cave of Nalanda and some caves Ajanta were erected. You can see the Nalanda University, photo of Nalanda University. Even then you can see the picture of caves of Ajanta. After Kumar Gupta first, his brave son Skandagupta came to power. The weak rulers of post-Skandagupta time could not withstand on the onslaught attacks of the obsessive and powerful Hunas, and Gupta Empire disintegrated in 550 AD. जैसो विक्रमादित्य के बाद उनका बेटा आया कुमार गुप्ता फर्स्ट, राइट। अभी उस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी लो, मैंने आपको बोला अजंता के उसके बारे में लो, वो हुई बनी, फाइन, उसके टाइम पे। देन आफ्टर स्कंद गुप्ता का नाम ले लो, बट वो जो थे वो ऑनस्लॉट वहाँ पे इतना टाइम रुक नहीं पाए, राइट।
वो वीक रूलर्स थे, वो इतने ऐसे अपने फादर की तरह ग्रेट रूलर्स नहीं थे. एंड पावरफुल हुनर्स एंड गुप्ता एम्पायर डिस्टिंग्रेटेड इन 550 AD. देन आफ्टर क्या हुआ कि भाई दूसरी डायनेस्टी ने या दूसरे लोगों ने उनपे क्या किया, अटैक किया. एंड वहां पे क्या होगा, स्कंद गुप्ता की डेथ हो गई. एंड वहां पे क्या हुआ, एंड आया किसका, गुप्ता डायनेस्टी का. फाइन. अभी हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड व्हाट सो देयर अदर स्टेटस. देन आफ्टर वी विल लर्न समथिंग अबाउट हर्षवर्धन, पुलकेशी टू, all these things, the conditions of science during the Gupta age we will learn. But again I am taking a short rapid revision of this chapter just because that you will not get confused, right? In short इस चैप्टर में क्या है कि गुप्ता एज गोल्डन एज थी. फाइन. ये हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एज. फर्स्ट वी हैव लर्न द मौर्यन डायनेस्टी, दैट वाज द एंड. मौर्यन डायनेस्टी के बाद न्यू डायनेस्टी कौन सी हुई, गुप्ता एज. दैट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन एज आल्सो. फाइन. अभी श्री गुप्त फर्स्ट जो थे वो तो फाउंडर थे किसकी, गुप्ता डायनेस्टी के. और उन्होंने अपना किंगडम कहाँ एक्सपांड किया, ऑब्वियसली मगध पे, क्योंकि मगध में मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो गया तो गुप्ता डायनेस्टी यही उन्होंने ही मगध पे खुद का एम्पायर जो था वो एक्सपांड किया. उनके सन कौन, घटोत्कच वन, विच इज ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त फर्स्ट. वो बहुत ही ग्रेट थे, ग्रेट रूलर थे. उन्होंने क्वीन लिच्छावी ट्राइब की कुमार देवी जो थी उनके साथ उन्होंने मैरिज किया. एंड उन्होंने टैग भी लिए महाराज धीरज का, देन इन द प्लेस ऑफ महाराज. एंड उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं कि ग्रेट रूलर्स थे, और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी जो किंगडम्स थी उन्होंने एक्सटेंड कर डाली थी. राइट. उसके बाद कौन है, समुद्रगुप्त फर्स्ट. ठीक है, समुद्रगुप्त है. कौन, किसके बाद, तो चंद्रगुप्त के बाद उनके ही बेटे समुद्रगुप्त. राइट. श्रीगुप्त के बेटे कौन, घटोत्कच, विच इज ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्त. एंड चंद्रगुप्त के बाद कौन से सन है, तो समुद्रगुप्त. अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो वो तो चंद्रगुप्त से भी बहुत ही आगे निकले, वो पोएट भी कहलाते थे. देन आफ्टर उन्होंने बहुत ही छोटे टाइम में नॉर्थ एंड साउथ को दोनों के जगह पे अपना जो एम्पायर था वो एक्सटेंड कर डाला था. इवन दो उन्होंने 12 किंग्स साउथ को भी डिफीट, 12 किंग्स साउथ के जो थे उनको भी उन्होंने डिफीट कर डाला था. एंड उनकी जो सारी जो चीज़ें थी बहुत ही छोटे टाइम पे उन्होंने वहाँ पे अटैक कर डाला था. एंड समुद्रगुप्त जो थे वो लवर थे म्यूजिक के. एंड उन्होंने जो गुप्ता एज के टाइम पे जो कॉइन्स छपे थे, गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने एक साइड पे खुद की वीणा की पोज दिया हुआ है, जिससे वो साबित होता है दैट आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो फाउंड दैट, उससे हमें ऐसे पता चलता है कि ही वाज अ लवर ऑफ म्यूजिक आल्सो. इसलिए उन्होंने एक साइड अपना क्या कहते हैं वीणा बजाते हुए उन्होंने क्या कहते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि स्टैम्प करवाया है, कॉइन में शो करवाया है. राइट. कि समुद्रगुप्त जो है वो वीणा प्ले कर रहे हैं. राइट. देन आफ्टर वो जो थे वो भी बहुत ग्रेट रूलर थे. देन आफ्टर उसको कविराज का भी नेम दिया गया, टाइटल दिया गया. एंड हियर वी हैड ऑल्सो सीन द पिक्चर्स ऑफ कॉइन्स. देन आफ्टर समुद्रगुप्ता के बाद उनके बेटे आए विक्रमादित्य, जिसको टैग क्या दिया गया, समुद्रगुप्ता 2 भी दिया गया. राइट. उनके बेटे विक्रमादित्य. अब विक्रमादित्य जो थे वो उससे भी ग्रेट थे, बहुत अच्छे रूलर थे. उन्होंने भी अपने फादर से जो लीगेसी मिली हुई थी, जो ग्रेट लीगेसी थी ऑफ फादर. राइट. एंड ही इज इनहेरिटेड बट ऑल्सो एक्सपांडेड द एक्सपायर ऑफ कॉन्करिंग सम अदर रीजन्स. अभी पूरे के पूरे जीन्स में ही आता रहता है, फादर इतने ग्रेट रूलर थे, उसके फादर इतने ग्रेट रूलर थे, सो ऑब्वियसली विक्रमादित्य थे वो भी ग्रेट रूलर ही पाया जाए, वो भी ग्रेट किंग थे. राइट. देन आफ्टर उनमें भी ग्रेट टैलेंट था. उन्होंने गुजरात पे भी अटैक किया, शक्य या शस्त्र डायनेस्टी पे. देन ऑल्सो उनको शाकाहारी का टाइटल भी मिला. राइट. देन आफ्टर वो जो थे उन्होंने भी छोटे टाइम पे अपनी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने कैप्चर्ड कर डाली. एंड उनके पास हम बता नहीं सकते इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो गई थी कि भाई गिन ना सके इतना प्रॉपर्टी एज उनके पास था. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द गोल्डन एज ऑल्सो. राइट.
इवन दो जो चंद्रगुप्त टू थे, जो विक्रमादित्य जो जिनके नाम से जाने जाते हैं, वो रिस्पेक्ट खुद के रिलीजन की तो रिस्पेक्ट करते ही करते थे, बट ही ऑल्सो रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन्स ऑल्सो। उनके मिनिस्टर्स ले लो, उनके बुद्धिस्ट उनके क्या कहते हैं कि भाई चीफ ले लो, वो दूसरी कास्ट से ही बिलोंग करते थे, बट उनको उनकी भी क्या कहते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट थी। देन आफ्टर मेहरौली आयरन पिलर जो है, जो नियर दिल्ली है, उन्होंने वो बिल्ट भी करवाया। इवन दो आज तक इतनी हॉट एंड हीट रेन के बाद, हीट के बाद, वो अभी तक भी रस्ट नहीं हुआ है। उन्होंने अपना कैपिटल है पाटलिपुत्र, तो उनका कैपिटल था ही। देन आफ्टर उन्होंने उज्जैन को भी अनदर कैपिटल उन्होंने डिक्लेयर्ड किया। एंड 414 इन द ईयर 414 क्या हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की क्या हो गई, डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे कौन, कुमार गुप्ता फर्स्ट, एंड उनके बेटे कौन, कुमार गुप्ता के बेटे स्कंद गुप्ता, उन दोनों के हाथ में थ्रोन आया। बट कुमार गुप्ता फर्स्ट के टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी एंड केव्स ऑफ अजंता बिल्ट हुई थी, वो हुई थी। एंड देन आफ्टर उसके बाद स्कंद गुप्ता थे, वो जो इतने पावरफुल रूलर नहीं थे, बट वहां पे थोड़े ही ड्यूरेशन में उनकी भी डेथ हो गई एंड दूसरी डायनेस्टी ने वहां पे अटैक किया। सो इन द ईयर 550 AD क्या हुआ, गुप्ता एज का क्या हुआ, एंड आ गया। अब आगे हम कोई दूसरी डायनेस्टी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट गुप्ता एज के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसी थी, कंडीशंस क्या थी उस टाइम पे साइंस की, देन कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग द गुप्ता एज, देन एम्परर हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू के बारे में पढ़ेंगे, बट वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ गुप्ता एज कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो till that stay home and stay safe. Thank you.